Hello students, welcome to MDC Learning Standard FIBCom. Subject Business Communication and topic is chapter number 1 Group Discussion and Interviews. Let's start with group discussion. What is the meaning of group discussion? A discussion between group, or you can say a discussion amongst group, means a group discussion. You can also say GD. GD is a tool used by schools, institutes, and companies to assess the personality of the person before giving him a job or admission to a course. Now normally जो ग्रुप डिस्कशन है वो बड़ी बड़ी स्कूल्स है, इंस्टीट्यूट है, बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो पर्सनालिटी असेस मीन्स पर्सनालिटी को इवेल्युएट करने के लिए, पर्सन की पर्सनालिटी को फाइंड आउट करने के लिए, जब भी अगर उनको जॉब देना है तो जॉब देने से पहले या उनको कोई एडमिशन देना है तो एडमिशन से पहले उनमें क्या क्या चीज़ है वो पर्सनालिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो ग्रुप डिस्कशन जो है वो रखा जाता है. While entrance exams test the candidates for their academics and knowledge of subjects, the GD will test one of their soft skills and their ability to cope with various situations. नॉर्मली जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है एकेडमिक की तब भी जीडी जो है वो रखा जाता है ताकि हमें पता चले कि पर्सन का सॉफ्ट स्किल मतलब बोलने का तरीका कैसा है और वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकता है. Usually the institutes or company conducting the GD know exactly what they want in their candidates. They are very clear about the specific traits. Specific traits मतलब different qualities that they want in their candidates. The group discussion helps them to analyze whether the candidates possesses the required traits or not. हमें यही कैंडिडेट चाहिए, दिस कैंडिडेट इज सूटेबल फॉर आर इंस्टीट्यूट और फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन. अगर यही कैंडिडेट हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए वो फाइंड आउट करने के लिए जीडी जो है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जीडी ऑल्सो सर्व्स अ मास एलिमिनेशन टूल. When there are many candidates applying for limited seat, the GD can act as a benchmark to select the best among the lot. जब भी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑब्जर्वर और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कंपनी कि कौन से कैंडिडेट को हमें रखना है. वो टाइम पे जीडी की मदद से बहुत सारे लोगों को निकालने के लिए बहुत सहाय में आता है हमें. So GD you can we can also say GD can act as a benchmark to select the best amongst the lot. Conducting a GD involves bringing together a group of 8 to 10 people who may or may not have interacted before, providing them with a topic and providing them a few minutes to prepare. As the discussion begins, the candidates exchange viewpoints on the topic provided and in the process reveal their analytical skills, team skills, leadership skills, social skills, problem solving skills and presence of mind. Now, GD कैसे कंडक्ट किया जाता है? Now there is a process where 8 to 10 people they sit together. चाहे वो पहले मिले हैं या नहीं मिले वो लोग साथ में आते हैं, उनको एक टॉपिक दिया जाता है और वो टॉपिक पे पर्टिकुलर मिनट्स के लिए उनको पर्टिकुलर मिनट्स जो है वो दी जाती है दैट यू विल बी गेटिंग सो एंड सो टाइम 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स वॉट एवर यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक. आपके बीच में ये टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करना है एंड देन डिस्कशन जो है वो बिगिन होता है. एंड ड्यूरिंग दैट डिस्कशन हमें पता चलता है जो ग्रुप डिस्कशन जो कंडक्ट करता है उसको पता चलता है कि किसी में स्पेशल स्किल्स है, किसी में लीडरशिप क्वालिटी है, किसी में सोशल स्किल है, किसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, किसी का माइंड बहुत तेज चल रहा है. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वाइल व्हेन वी आर कंडक्टिंग जीडी it's very easy for organization to find out a correct person for correct job. The duration of GD it is vary from institute to institute or you can say organization to organization. GD का टाइम जो है वो अलग अलग हो सकता है, depends on organization, institute or whatever.
फॉर ईच कैंडिडेट एन एसेसर मतलब जज, जो सबको जज करता है, मे बी असाइंड, यूजुअली एन असेसर assesses 2 or 3 candidates. They will be watching every move made by the candidate. Now, एक ऑब्जर्वर होता है जो 2-2, 3-3 लोगों को ऑब्जर्व करता है. वो उसके हर एक मूव को ऑब्जर्व करता है कि वो ग्रुप डिस्कशन में कैसे बोलते हैं, कैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे उनके एक्सप्रेशंस है, एवरीथिंग दे ऑब्जर्व. Group discussion, you can also say a personality test, are now recognized and used an important tool for selecting the right person for the right job. I have already said before that group discussion को already personality test के लिए भी काम में लिया जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा person कौन से job के लिए suitable है. The objective tests are impersonal, linked to the computer, and serve as a major screening aid. Normally, group discussion test demands personal participation of the candidate as well as evaluation by experienced and trained examiner, because it is used for final selection from amongst the candidates who have already qualified themselves and written an objective test. जब भी ये ग्रुप डिस्कशन होता है तभी बेसिकली पर्सन का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ जो एग्जामिनर है, जो दैट एग्जामिनर शुड बी वेल ट्रेन्ड एंड वेल एक्सपीरियंस, बिकॉज दोज कैंडिडेट, जो कैंडिडेट ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठता है ना, वो कैंडिडेट ऑलरेडी पहले 2-3 राउंड क्लियर करके आया है. मतलब वो कैंडिडेट ऑलरेडी चुन के छान के आगे बढ़ा है. मतलब दैट कैंडिडेट्स ऑलरेडी, तो उसमें वो क्वालिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है. तो उसके लिए पर्सन जो उसको इवेल्युएट करता है, जो फाइंड आउट करता है, जो ऑब्जर्व करता है, दैट पर्सन शुड बी वेल ट्रेन्ड पर्सन एंड एक्सपीरियंस पर्सन, दैट ही कैन फाइंड आउट येस दिस इज द करेक्ट पर्सन फॉर दिस जॉब. सो दैट पर्सन शुड बी बेस्ट. All the participants in group discussions are a person competing for the same job or a professional course, and there is bound to be competition and clash during the discussion. See, everybody has applied for the same, right? अभी यहाँ पे कोई एक जगह पे वैकेंसी है. I'll give you one example that there is a vacancy for air hostess. Okay, air hostess in, I would say, British Airways airline, for example. I'm giving you example. तो सब लोग, जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं, वो सब लोग ब्रिटिश एयरवेज की एयर हॉस्टेस बनने के लिए ही आए हुए. तो सब लोग को सेम टॉपिक दिया जा रहा है, सबके बीच में सेम कंपटीशन है, सबको सेम ही टॉपिक पे बोलना है, लेकिन आइडियाज़ अलग होंगे, अपना दिमाग अलग होगा, अपनी पर्सनालिटी अलग होगी, अपनी स्पेशल स्किल अलग होगी, टीम स्किल अलग होगी, लीडरशिप स्किल जो है वो अलग होगी. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. I mean, in that group, they just see that how you are behaving, what is your capacity, how is your communication skill. Basically, group discussion is meant for, it is made for communication skill. That what is your soft skill, how आप कितना अच्छी तरह से बोल सकते हो इतनी खराब सिचुएशन में भी, और कैसे आप उस सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर सकते हो. राइट, लेट्स गो अहेड. नाउ नॉर्मली जीडी टेस्ट जो होता है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. नंबर 1 इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन. यस, व्हेन ग्रुप डिस्कशन इज वर्बल ओरिएंटेड टेस्ट, मतलब इट इज वर्ड्स, जो वर्ड्स में होता है, एंड द कैंडिडेट हैज टू टॉक हिज वे आउट. कैंडिडेट्स को अपने हिसाब से बोलना चाहिए, अपने हिसाब से बोलना है ग्रुप डिस्कशन में, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने आप को दिखाना है. एबिलिटी टू स्पीक वेल हेल्प्स टू गेन गुड पॉइंट्स इन द टेस्ट. अगर आपके पास अच्छी बोलने की क्षमता है तो आप अपनी टेस्ट में इट इज़ योर प्लस पॉइंट. अगर आप, व्हेन यू आर अ गुड स्पीकर, इट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर जीडी. When a person can't speak, that person cannot sit in GD. वो सिर्फ चुप ही बैठेगा. इसलिए सबसे पहले पावर ऑफ एक्सप्रेस. आप कितने फ्लुएंट हो, द कैंडिडेट मस्ट बी स्पीक फ्लुएंटली एंड फोर्सफुली टू क्रिएट इम्पैक्ट एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ग्रुप एंड द ऑब्जर्वर एंड क्रिएट अ फेवरेबल इम्प्रेशन. येस, बेसिकली क्या होता है,
जब ये ग्रुप डिस्कशन होता है, तभी वो देखा जाता है कि कैंडिडेट कितना फ्लुएंटली बोलता है, कितना फोर्सफुली लोगों के दिमाग में वो अट्रैक्शन वाला धक्का देता है, दैट दैट आई एम द बेस्ट। व्हेन ऑब्जर्वर, जब भी मैं फॉर एग्जांपल आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो और मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो सब ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम, सब कैंडिडेट सेम नहीं रहेंगे, लेकिन किसी में ऐसी क्वालिटी होगी जो थोड़ी डोमिनेटिंग वाली होगी, जो किसी को किसी की पर्सनालिटी ऐसी दिखती होगी कि डोमिनेटिंग वाली है, लेकिन वो डोमिनेटिंग वाली नहीं होती है, बट सॉफ्ट स्पोकन होती है और वो अट्रैक्शन वाली पर्सनालिटी है। वी जब भी ध्यान से देखते हैं तभी पता चलता है कि बेस्ट पर्सन, वी कैन सिलेक्ट दिस पर्सन बिकॉज बोलने में इतने अच्छे थॉट, इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, इतना फोर्स उसके दिमाग में टू अट्रैक्ट माई अटेंशन। सेकेंड पॉइंट, idea and knowledge of the subject given for discussion. See, you cannot talk anything. You cannot talk any nonsense thing. Whatever topic is given to you, you have to talk on that topic only. You cannot go off track, off the track आप नहीं जा सकते हो। तो सबसे पहले जब भी कोई एक टॉपिक को डिस्कशन के लिए आपको दिया जाता है, you must be having that knowledge and idea for the topic. The candidates must remember that knowledge is a power and ideas rule the world. With sound knowledge and innovative ideas, the candidate feels confidence and become more fluent and convincing in the speech. Whatever is said in the discussion must be relevant, logical, convincing, interesting, and appealing to the group. See, normally we say that knowledge is a key for everything. One side, if I give you one option that you have lots of money and you have knowledge, I'll tell you one thing. नॉलेज का जो पावर है ना, जो नॉलेज का मेजरमेंट है, वो पैसों से भी ज़्यादा है. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट इज़ वेरी प्रीशियस. देर इज़ नो प्राइज ऑफ नॉलेज. नॉलेज आपको कहीं पे, कहाँ पे, कैसे काम आ जाए, यू नेवर नो. पैसा सब जगह पे इतना काम नहीं आ सकता. तो जब भी आप नॉलेज के साथ और आइडियाज़ के साथ जब भी बोलते हो ना, जब भी आपके पास नॉलेज है और आइडियाज़ है ना, यू विल बी कॉन्फिडेंट. आपका कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं होगा. आपको पता है कि मुझे क्या बोलना है, मैं कितनी लॉजिकल बात कर सकती हूँ, मैं कितना लोगों को कन्विंस कर सकती हूँ, मैं कितना इंटरेस्ट लोगों मेरे में दिखा सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स. इफ़ यू हैव प्रॉपर नॉलेज एंड आइडियाज़, देन ओनली यू कैन डू सच थिंग्स. Leadership ability and coordinating capacity. The group discussion test is also a leadership test, the aim of which is natural leadership level of the candidate. बेसिकली ग्रुप डिस्कशन में जो ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होता है वो लीडरशिप टेस्ट भी बोला जाता है. मतलब वो उसके लिए भी बनाया जाता है कि कौन सा बेस्ट है, ताकि और वो नेचुरल लीडरशिप जो है वो होना चाहिए कैंडिडेट. इट्स नॉट आर्टिफिशियल. नो वन फ्रॉम द ग्रुप or outside is designated as a leader or chairperson or coordinator of the group. कोई भी बाहर से या ग्रुप में से डायरेक्टली पहले से ही लीडर, चेयरपर्सन, कोऑर्डिनेटर कुछ बनाया नहीं जाता है. The examiner, after launching the discussion, withdraws himself to the background and becomes a silent observer. जो एग्जामिनर होता है वो साइलेंट ऑब्जर्वर बनता है. वो पूरा सब कुछ डिस्कशन देखता है बैकग्राउंड में कि क्या चल रहा है. द कैंडिडेट हु डिस्प्लेज इनिशिएटिव, टैक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली बिकम द लीडर एंड कंट्रोल्स द डिस्कशन. जिसमें बोलने की क्षमता है, जिसमें इनिशिएटिव स्टार्टअप बिगिनिंग करने की जिसमें आर्ट है, जिसके पास वो टैक्ट है, टॉपिक को अच्छे से समझता है और समझाता है, अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करता है, वो पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली लीडर बन जाता है. उसको स्पेशली लीडर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, इट्स नॉट डिज़ायरेबल कि मुझे ही बनना है, मुझे ही लीडर बनना है. नो,
it is desire, it's not desirable, it should be positive that everyone has the equal chance, सब लोग equally बन सकते हैं, सबको fair chance मिलना चाहिए, equal chance मिलना चाहिए, वो person जो है वो अच्छी तरह से leader बनता है। आज इसके साथ we have completed group discussion and three important aspects of group discussion।